Question number 9. The following is the recipient payment account of Lion Club for the year. Okay, students, now the next sum. That is question number 9. And I say to you that you try by yourself. Now I am solving. Okay. Question number 9. The following is the recipient payment account of Lion Club for the year ended 31st March 2016. So they have given you recipient payment account. And when I say recipient payment account, I need to say cash and bank account. And they have said cash and bank account for the year ended 31st March 16. अगर year end 31st March 16 है तो year कभी start होगा? 1st April 15. हमारा current year कौन सा होगा? 15 16. Okay. Now मैं read करता हूँ. Receipt, opening balance, cash bank, subscription received, entrance donation, interest received, sale of asset. हमने कोई asset बेचा होगा. Miscellaneous income. Then they have given receipt at coffee room. Obviously club है. तो they have given receipt at coffee room, soft drinks, swimming pool, tennis court. Okay. Now payment side देखो. Salaries, creditors, stationery, postage, telephone, repairs, glass and table linen, crockery, garden upkeep, membership fees, insurance, electricity, and then they have given closing balance. और closing balance में उन्होंने दिया cash और बैंक. So they have given you the recipient payment account. ठीक है. अभी उन्होंने देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है. सब इन्फॉर्मेशन दिया है. So I always say that way. उन्होंने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है हमें मार्क करने का कि ओपनिंग का थी, क्लोजिंग का. So the asset and liabilities as on 1st April 15 were as follows. And when I say 1st April 15, I mean to say opening. तो उन्होंने ओपनिंग asset और क्या दिया हुआ है? Liabilities. ठीक है. So मार्क कर देने का ओपनिंग इन्फॉर्मेशन. अभी देखो ओपनिंग asset and liability में क्या दिया है? Fixed asset net, stock, investment in 12% government securities, outstanding subscription, prepaid insurance, sundry creditors they have given, subscription received in advance, entrance donation received pending membership. अगर आपको entrance donation आया received pending membership. I will explain what it is. Gratuity fund. Okay, तो ये opening है. हमने मार्क किया कि opening है. Then further, the following adjustments are to be made while drawing up the accounts. So they have said the following adjustments are to be made. First, subscription received in advance as on 31st March 16 was 18,000. So subscription received in advance as on 31st March 16. 31st March 16 मतलब year end. Okay, और year end मतलब closing. तो पहले हमें मार्क करना है कि opening का closing. Okay, so basically this is closing. Then outstanding subscription as on 31st March 16 was 7,000. Closing. Outstanding expense are salaries 8,000 and electricity 15,000. ये भी closing. Then fourth, 50% of the entrance donation was to be capitalized. ठीक है. There was no pending membership as on 31st March 16. ये भी closing. Then fifth क्या बोला है? Cost of assets sold net as on 1/4/15 was 10,000. ठीक है. अभी ये जो उन्होंने दिया है ना ये basically cost of assets sold net as on 1st April 15 was 10,000. तो basically ये उन्होंने क्यों दिया है? क्योंकि देखो पहले आप देखो कि उन्होंने ओपनिंग में आपको देखो ओपनिंग में फिक्स एसेट दिया है. देखो ना वो दिया ना एसेट लाभ दिया 1/4/15 वाले स्कॉलर्स को ओपनिंग में उन्होंने देखो फिक्स एसेट दिया नेट 5 लाख. ठीक है. तो इसका मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास फिक्स एसेट था 5 लाख. स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास फिक्स एसेट था 5 लाख. राइट. नाउ मैं कनेक्ट कर रहा हूं. अभी देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड देखो. फिफ्थ आइटम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसिप्ट साइड फिफ्थ आइटम देखो सेल ऑफ एसेट 8,000. इसका मतलब उन्होंने बोला कि हमने करंट ईयर में एसेट बेचा है. ठीक है. अभी ओपनिंग में फिक्स एसेट दिया है 5 लाख और बाद में उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला है फिफ्थ आइटम सेल ऑफ एसेट 8,000. ओके. इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हमने पार्ट एसेट ही बेचा हो. ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है ना. ऐसे तो हमारे पास से स्टार्टिंग में फिक्स एसेट 5 लाख है. स्टार्टिंग में हमारे पास फिक्स एसेट 5 लाख है. एट द स्टार्ट दे हैव गिवन. और ऐसा भी हो सकता है ना कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में फिक्स एसेट जो 5 लाख है और रिसिप्ट साइड उन्होंने बोला कि हमने सेल किया है 8,000 में. ऐसा हो सकता है ना कि ये जो स्टार्टिंग में जितना फिक्स एसेट है उसमें से हमने पार्ट बेचा हो. पार्ट एंड सी नाउ अभी पार्ट बेचा. ऐसा हो सकता है. उसी में मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं. सी द फिफ्थ एडजस्टमेंट. उन्होंने बोला कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/15 was 10,000. इसका मीनिंग क्या होगा? व्हेन आई से कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड ऑन 1/4/15 इसका मीनिंग ऐसा है कि हमने जो एसेट 8,000 में बेचा हमने जो एसेट 8,000 में बेचा है उसका कॉस्ट कितना है? उसका कॉस्ट 10,000. हमने जो 8,000 में एसेट बेचा उसका कॉस्ट 10,000. राइट. इन स्टार्टिंग में तो हमें फिक्स एसेट 5 लाख का दिया था. स्टार्टिंग में तो उन्होंने हमें फिक्स एसेट कितने का दिया था? 5 लाख. और ये फिक्स एसेट का क्या है? स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है वो फिक्स एसेट का कॉस्ट है. स्टार्टिंग में जो दिया है वो फिक्स एसेट का कॉस्ट है. राइट. सो नाउ आई कैन से स्टार्टिंग में हमारे पास 5 लाख की फिक्स एसेट थी. उसमें से जिसका कॉस्ट 10,000 था उसमें से जिसका कॉस्ट 10,000 था वो हमने 8,000 में बेचा. इसका मतलब ये कांसेप्ट है पार्ट एसेट सोल्ड. ये कांसेप्ट किसका है? पार्ट एसेट सोल्ड. मतलब ये जो फिफ्थ एडजस्टमेंट है वो हमें क्या काम है? ऐसे हमने 12th में भी पढ़ा है कि कोई भी एसेट अगर हम बेचते हैं कोई भी एसेट अगर हम बेचते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है. कोई भी एसेट बेचोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है. तो उसके लिए उन्होंने ये कॉस्ट दिया. तो कॉस्ट 10,000 है. जो एसेट बेचा उसका कॉस्ट 10,000 है. बेचा 8,000 में तो 2,000 का क्या होगा? लॉस. ठीक है. वो कैसे प्रेजेंट करेगा मैं आपको बता रहा हूं. उसी के लिए कनेक्ट करके बताएं. मतलब बेसिकली फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है? क्या मार्क करने का? कुछ मार्क नहीं करने का. इसका कुछ मार्किंग नहीं करने का. सिर्फ इतना ध्यान रखने का जो एसेट बेचा उसका कॉस्ट जो एसेट बेचा 8,000 उसका कॉस्ट 10,000. ठीक है. नाउ सो डोंट मार्क एनीथिंग. नाउ सिक्स्थ एडजस्टमेंट देखो. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन एसेट. तो डेप्रिसिएशन क्लोजिंग है. डेप्रिसिएशन क्लोजिंग है. तो मैंने मार्क करना होगा ना कि ओपनिंग की क्लोजिंग. डेप्रिसिएशन क्लोजिंग है. क्लोजिंग मार्क करो. फिर सेवेंथ देखो a sum of rupees 20,000 received in October 15 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 2016. Now, what they have said, वापस देखो, a sum of 20,000 received in October 15 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है कि कोई मेंबर था. ठीक है. हमने उसे एंट्रेंस डोनेशन का पैसा दिया. हमने उसे एंट्रेंस डोनेशन का पैसा दे दिया. बराबर है. बट देन उसने मेंबरशिप की जो क्राइटेरिया थे वो उसे फुलफिल नहीं किए. उसने मेंबरशिप के क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए. ओके. तो उसने एंट्रेंस डोनेशन दे दिया था. अभी उसने एंट्रेंस डोनेशन कभी दिया 15 में दे दिया और उन्होंने मंथ मेंशन किया. अक्टूबर 15 को उसने एंट्रेंस डोनेशन दे दिया और उन्होंने बोला कि उसने मेंबरशिप का जो रिक्विजिट था मतलब जो क्राइटेरिया था वो उसने फुलफिल नहीं किया. अगर उसने मेंबरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको वो रिफंड दे देगी.
ऑर्गेनाइजेशन उसको वो रिफंड दे देगी। उन्होंने बोला ये रिफंड कभी दिया हुआ है 3 जून 16। सो पॉइंट क्या, उसने एंट्रेंस डोनेशन कभी अक्टूबर 15 को दिया, उसने एंट्रेंस डोनेशन अक्टूबर 15 को, मतलब करंट ईयर में दिया ना, मतलब करंट ईयर कौन सा है 15 16 है, तो उसने करंट ईयर में दिया, ठीक है, उसने एंट्रेंस डोनेशन करंट ईयर में दिया, लेकिन उसने मेंबरशिप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन उसको रिफंड किया 3 जून 16 को। 3 जून 16 मतलब ऑब्वियसली हमारा ईयर एंड 31 मार्च 16, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 16, हमारा ईयर एंड 31 मार्च 16, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसको रिफंड कर दिया 3 जून 16 मतलब ईयर एंड के बाद। और सिंस ऑर्गेनाइजेशन उसको ईयर एंड के बाद कर दिया, तो ईयर एंड पे ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर को देना बाकी है, ईयर एंड को ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसा मेंबर को देना बाकी है, क्योंकि उसने नेक्स्ट ईयर दिया। सो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को ये पैसा ईयर एंड पे देना बाकी है, तो ये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ। क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग, कैसे पे देने को आएगा, तो ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ब्रैकेट में मार्क करो क्लोजिंग, मार्क करो क्लोजिंग। नाउ नेक्स्ट, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 50 lakhs, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 50 lakhs, इसको खाली क्लोजिंग मार्क करो और फिर मैं आपको बाद में लॉजिक समझाऊंगा, मार्क कर दो क्लोजिंग। फिर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,10,000, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000, इसको भी मार्क करो क्लोजिंग। 10th देखो, द क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलरी ग्लास एंड लिनेन इन द ईयर ऑफ परचेज। तो ये उन्होंने ऐसा बोला है कि क्लब एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी, क्लब का ये पॉलिसी था कि उसने जो भी परचेज किया ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलरी ग्लास एंड लिनेन, देखो यहाँ पे पेमेंट सेट दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखो पेमेंट सेट दिया हुआ है, सीधा 7th आइटम ग्लास एंड टेबल लिनेन क्रॉकरी एंड कटलरी। उन्होंने बोला है कि फर्म क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो भी क्रॉकरी कटलरी ग्लास खरीदा है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालती है। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि ये सब आइटम आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव डिस्कस द सम, ओके, और हमने मार्क किया, हमने क्या मार्क किया, कौन सा आइटम ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग, ठीक है। ना अभी हम क्या करेंगे, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जैसा नॉर्मल हमारे स्टेप्स है आपको वैसे ही सम सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ स्टेप नंबर 1, फ्रॉम ओपनिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग इंफॉर्मेशन जो हमने मार्क किया उससे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, असेट को असेट साइड एंड लायबिलिटी को लायबिलिटी, ठीक है। तो जो भी ओपनिंग इंफॉर्मेशन है देखो हमने जो मार्क किया है, एंड देयर स्पेसिफिकली गिवन असेट एंड लायबिलिटी एज ऑन 1415, 1415 मतलब ओपनिंग, फिक्स्ड असेट 5 lakh, then stock 3,80,000, then investment how much, 5 lakh, okay, outstanding subscription outstanding income asset 12,000, prepaid insurance asset 10, sundry creditors liability, then subscription received in advance मतलब income received in advance liability, entrance donation received pending membership, ये liability होगा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आ गया, रिसीव पेंडिंग मेंबरशिप मतलब क्या, ऐसा होता है ना प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मेंबर ने एंट्रेंस डोनेशन का पैसा दे दिया ऑर्गेनाइजेशन को, तो मेंबर ने एंट्रेंस डोनेशन का पैसा ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा है, लेकिन अब तक ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मेंबरशिप अलॉट नहीं किया, तो ऑर्गेनाइजेशन अब तक मेंबरशिप उसको अलॉट नहीं किया, तो अब तक वो मेंबर नहीं है, एंड सिंस अब तक वो मेंबर नहीं है, सो ऑब्वियसली ये जो पैसा ऑर्गेनाइजेशन को आया, आई कैन से इट इज इन द नेचर ऑफ एडवांस, इट इज इन द नेचर ऑफ एडवांस। आप समझो ऑर्गेनाइजेशन को एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आया, ओके, अब तक ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंबरशिप नहीं दिया, अगर ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंबरशिप नहीं दे रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, मींस देगा बट देन वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना बाकी होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अब तक मेंबरशिप नहीं दिया, तो एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आ गया ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मेंबरशिप अब तक नहीं दिया, अब तक मेंबरशिप नहीं दिया तो वो मेंबर नहीं है, और अगर वो मेंबर नहीं है तो उनसे जो पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन को, उनसे जो पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट विल बी इन द नेचर ऑफ एडवांस रिसीव, ये एडवांस में पैसा आ गया ना ऑर्गेनाइजेशन को, मेंबरशिप अब तक दिया नहीं है, तो ये एडवांस में पैसा आया, और एडवांस रिसीव इज बेसिकली लायबिलिटी, गॉट इट। सो आई विल राइट एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, हाउ मच, 1 lakh। नेक्स्ट ग्रेचुइटी फंड, नहीं समझते तो कोई भी फंड क्या होता है, लायबिलिटी होता है, ग्रेचुइटी का मीनिंग मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, ये तो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा कांसेप्ट है, कोई भी फंड बढ़ाता है तो लायबिलिटी से, सो व्हाट आई डिड इज फ्रॉम ओपनिंग इंफॉर्मेशन टू ओपनिंग बैलेंस शीट असेट को असेट साइड लायबिलिटी को लायबिलिटी। नाउ और कोई ओपनिंग इंफॉर्मेशन है, देखो ना हमने सब देखा, हमने सब डिस्कस किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देन 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th सब डिस्कस किया, राइट, एक भी हमने ओपनिंग नहीं मार्क किया, ठीक है, वी आर नॉट मार्किंग एनीथिंग एज ओपनिंग, तो और कोई ओपनिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं, ठीक है, इतना ही। सो फ्रॉम ओपनिंग इंफॉर्मेशन टू ओपनिंग बैलेंस शीट असेट को असेट साइड लायबिलिटी को लायबिलिटी। नाउ सिर्फ ओपनिंग इंफॉर्मेशन से ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से भी बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश एंड बैंक अकाउंट, तो देखो कैश एंड बैंक अकाउंट तो उससे भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, उसे रिसिप्ट साइड देखो ओपनिंग बैलेंस दिया कैश और बैंक का, अगर ओपनिंग बैलेंस कैश कर लिया वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश 10,000, देन ओपनिंग बैलेंस बैंक कर लिया कितना 385, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें जो बैलेंस दिया स्टार्टिंग में उसे ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, और ओपनिंग बैलेंस भी ओपनिंग बैलेंस शीट, और जस्ट देख लेने का और कोई ओपनिंग आइटम है कि नहीं, रिसिप्ट एंड पेमेंट को देख लेंगे, कुछ भी इंडिकेशन नहीं है ओपनिंग का और कोई आइटम नहीं है, उन्होंने कोई इंडिकेशन नहीं दिया, ठीक है। सो ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट का क्या करने का, टोटल पहले असेट साइड का मैं करूंगा,
1029,850 and this is basically capital fund. Okay, opening balance sheet का टोटल किया, लेट्स कर दिया, वही liability और differences capital fund. Right now, so opening balance sheet बन गया. Now step number 2, opening balance sheet one effect. Okay, अभी expense income का item होगा तो डॉट मार्क करने का, बाकी सब आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनर कॉलम और कैश एंड बैंक को क्या करने का, इग्नोर. सो देखो अभी ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, तो पहले फिक्स एसेट एक्सपेंस इनकम आइटम नहीं है, तो मैं कहां पे लिखूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इनर कॉलम. नाउ स्टॉक, सी द स्टॉक होता है, स्टॉक बेसिकली ये स्टॉक एक्सपेंस इनकम आइटम. सो बेसिकली दिस स्टॉक एक्सपेंस इनकम आइटम. ओके, और सिंस ये एक्सपेंस इनकम आइटम है, राइट, ये एक्सपेंस इनकम आइटम, तो क्या है डॉट मार्क. नाउ ये डॉट मार्क हम किधर करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ये डॉट मार्क हम किधर करेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. नाउ अब ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कहां पे करेंगे, डॉट मार्क. देखो कहां पे करने का, सो देखो बेसिकली इसका डॉट मार्क कहां पे आएगा, तो आई विल से दैट अगर करना है तो बेसिकली ना इसके डॉट मार्क आप है ना क्रेडिटर्स पे कर सकते हो. पेमेंट से जो क्रेडिटर्स है ना उस पे आप कर सकते हो, करना है तो उस पे कर सकते हो. अभी क्यों मैंने उस पे किया, क्यों मैंने क्रेडिटर्स पे किया, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन. अगर मारना है कभी मार दो, एक मिनट बहुत अच्छा लॉजिक सिखाने का बाकी, उसे क्रेडिटर्स पे मार दो चलेगा. क्यों मारा, अगेन आई एम सेइंग आई विल एक्सप्लेन लेटर. मार दो, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. सो ओपनिंग बैलेंस शीट इफेक्ट, एक्सपेंस इनकम आइटम होगा तो डॉट, बाकी सब आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस इनकम आइटम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम. देन नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम आइटम, सब्सक्रिप्शन पे क्या आएगा, डॉट मार्क है ना, सब्सक्रिप्शन इनकम आइटम, सब्सक्रिप्शन पे डॉट. देन प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस आइटम है, तो इंश्योरेंस पे क्या आएगा, डॉट मार्क. मारो इंश्योरेंस पे डॉट मार्क, व्हाटएवर आई से यू डू इट. कैश एंड बैंक को क्या करेगा, इग्नोर. कैपिटल फंड एक्सपेंस इनकम आइटम नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट इनर कॉलम. ये क्रेडिटर्स है, ठीक है. तो नाउ बेसिकली क्रेडिटर्स का क्या करेगा. सो अगेन आई एम सेइंग, मुझे आपको एक लॉजिक समझाना है, मुझे आपको लॉजिक, ठीक है. नाउ फॉर दैट, वो लॉजिक समझाने के लिए पहले खाली एक काम करो, जो क्रेडिटर्स है उसका डॉट मार्क कर दो. इस पे क्रेडिटर्स पे देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट पे जो क्रेडिटर्स है वहां पे डॉट मार्क करो, दो डॉट मार्क हो जाए. लॉजिक में समझा रहा हूं. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये सब्सक्रिप्शन इनकम आइटम है, तो सब्सक्रिप्शन पे क्या आएगा, डॉट मार्क. नाउ एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, ठीक है, तो इसका भी आप डॉट मार्क करोगे. किस पे करोगे, एंट्रेंस डोनेशन पे करो. लॉजिक समझा रहा हूं, एंट्रेंस डोनेशन पे करो. एक्सप्लेन द लॉजिक. ग्रेचुइटी फंड, ये एक्सपेंस इनकम आइटम नहीं है, कहां पे ना, क्लोजिंग बैलेंस. राइट, सी नाउ ये जो दो तीन आइटम मैंने आपको बोला कि डॉट मार्क करो, एक्सप्लेनिंग अप्रोप्रिएट टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा. ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया. थर्ड स्टेप अभी क्या है, रीड क्लोजिंग, पुट डॉट. सो हम क्लोजिंग रीड करेंगे और डॉट मार्क करेंगे. जो हमने क्लोजिंग मार्क किया उसको रीड करेंगे और डॉट मार्क करेंगे. नाउ फर्स्ट देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन मार्च 16, रीड क्लोजिंग, पुट डॉट मार्क. सब्सक्रिप्शन पे डॉट मार्क, ये मार्क तो किया ही है ना कि हमने क्लोजिंग का आइटम है, तो हमने स्टार्टिंग में मार्क कर दिया, ये क्लोजिंग है, हमने रीड किया और सब्सक्रिप्शन पे डॉट मार्क किया. नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 16 was 7,000. सो रीड क्लोजिंग, पुट डॉट मार्क. हमने सेकंड एडजस्टमेंट में बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st March 16 द ईयर एंड, तो ये क्लोजिंग में रीड किया और हमने डॉट मार्क किया, इस पे सब्सक्रिप्शन. थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर सैलरीज 8,000, इलेक्ट्रिसिटी 15,000, ये भी क्लोजिंग है, हमने रीड किया एंड पुट डॉट मार्क. हम इस पे डॉट मार्क करेंगे सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी पे. नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, 50% of the entrance donation was to be capitalized. There was no pending membership as on 31st March 16. ठीक है ना, उन्होंने बोला है 50% of the entrance donation was to be capitalized. राइट, रीड क्लोजिंग, पुट डॉट मार्क. हम एंट्रेंस डोनेशन पे क्या मारेंगे, डॉट मार्क. ये सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने स्टेटमेंट दिया है. There was no pending membership as on 31st March 16. क्यों ऐसा दिया हुआ था, there was no pending membership as on 31st March 16? क्योंकि देखो ओपनिंग में, सुनो ओपनिंग में एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप था. और अगर एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि ये जो एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आया था, और पेंडिंग मेंबरशिप मतलब अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने मेंबरशिप उसको नहीं दिया था, जब तक वो मेंबर नहीं होता है और उसका एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आया है, उसका एंट्रेंस डोनेशन का पैसा है, पेंडिंग मेंबरशिप तो जब तक मेंबर नहीं होता है तब तक ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होगा. और अगर सपोज अगर ये ईयर में अगर कोई भी पेंडिंग मेंबरशिप बाकी है, अगर कोई भी पेंडिंग मेंबरशिप नहीं बाकी है, इसका मतलब क्या होगा कि जो स्टार्टिंग में दिया हुआ उन्होंने एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, वो जो हमें लायबिलिटी साइड दिया है, क्योंकि मेंबरशिप पेंडिंग, अभी करंट ईयर में सपोज उसको मेंबरशिप दे दिया, करंट ईयर में मेंबरशिप दे दिया, तो अभी ये पैसा लायबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उसको मेंबरशिप दे दिया. और अगर हमने उसको मेंबरशिप दे दिया तो ऑब्वियसली अभी उसका एंट्रेंस डोनेशन का पैसा लायबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं रहेगा, लायबिलिटी नहीं रहेगा, अभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनकम हो जाएगा. कॉमन सेंस का. सी पहले स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप, जब तक ऑर्गेनाइजेशन उसको मेंबरशिप नहीं देता तब तक वो लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, लायबिलिटी हुआ, जब तक मेंबरशिप नहीं दिया तब तक ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा लायबिलिटी है. ठीक है, क्योंकि इट इज इन द नेचर ऑफ एडवांस. अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको से करंट ईयर में मेंबरशिप दे दिया, तो अभी ये एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप अभी लायबिलिटी नहीं हो सकता क्योंकि उसको मेंबरशिप दे दिया. नाउ दिस लायबिलिटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनकम, एंड सिंस दिस लायबिलिटी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनकम,
Since this liability will get converted into income, इसीलिए ये जो ओपनिंग में एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप है, ओपनिंग में जो एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप है, लायबिलिटी साइड दिखा है, तो करंट ईयर में अगर मेंबरशिप दे दिया तो वो लायबिलिटी नहीं रहेगा, और सिंस वो लायबिलिटी नहीं रहेगा वो इनकम हो जाएगा। इसीलिए रिसिप्ट साइड ये 1 लाख रुपीस जो है ना, ये जो 1 लाख रुपीस है, रिसिप्ट साइड जो आपको एंट्रेंस डोनेशन दिया है ना, रिसिप्ट साइड जो एंट्रेंस डोनेशन दिया है, हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि वो इनकम हो गया, अब वो लायबिलिटी नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला था इसका हम एंट्रेंस डोनेशन पे डॉट मार्क कर देते हैं। ये भी मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया ना आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट में इफेक्ट मैंने क्या बोला कि एंट्रेंस डोनेशन पेंडिंग मेंबरशिप का हम क्या कर देंगे, डॉट मार्क करेंगे एंट्रेंस डोनेशन पे। क्यों बोला था वो, ये रीजन से कि अभी वो लायबिलिटी नहीं रहेगा, अभी वो इनकम हो जाएगा, वो इनकम हो जाएगा, सो नाउ वी कंसीडर इट एज इनकम। तो रिसिप्ट साइड जो एंट्रेंस डोनेशन है उसमें हम इनकम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और भी समझाऊंगा, इतना समझा तो बस, आई एक्सप्लेन मोर, ठीक है। इसलिए वो स्टेटमेंट का रेलेवेंस है। और सपोज उन्होंने अगर ऐसा बोला होता, एक एग्जांपल है, ये जो पेंडिंग मेंबरशिप है उसका डोनेशन का 1 लाख है, तो उन्होंने ऐसा बोला होता बाय चांस, वाइड पॉसिबिलिटी, इसमें से 50% को मेंबरशिप दे दिया और 50% का बाकी, तो फिर 50% को मेंबरशिप दे दिया होता तो इसमें से 50% हम ऐसे इनकम दिखाते हैं, मतलब रिसिप्ट साइड एंट्रेंस डोनेशन में ऐड करते हैं और बाकी का 50% क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि इसमें से 50% लोगों को ही मेंबरशिप मिला, 50% का बाकी है, पेंडिंग है, जो 50% लोगों को मेंबरशिप मिला है, 1 लाख का 50% 50,000 को मेंबरशिप मिल गया है, वो 50,000 को हम इनकम कंसीडर करते हैं और इनकम साइड दिखाते हैं, दैट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट एंट्रेंस की है ना, उसमें ऐड करते हैं। और बाकी 50% अभी भी मेंबरशिप अगर पेंडिंग है तो हम उसको बाकी के 50%, दैट इज बाकी 50,000 को क्लोजिंग बैलेंस शीट में वापस लायबिलिटी साइड। लॉजिक समझो आप, लॉजिक समझो, ठीक है। यहाँ पे तो बोल दिया कि नो पेंडिंग मेंबरशिप मतलब सब इनकम है, हम इनकम दिखाएंगे, इसलिए हम रिसिप्ट साइड एंट्रेंस डोनेशन है उसमें क्या कर दिया, ठीक है ना। इन शॉर्ट फॉर एडजस्टमेंट क्लोजिंग 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन वाज टू बी कैपिटलाइज्ड, रीड क्लोजिंग पुट डॉट हमने डॉट मार्क किया एंट्रेंस डोनेशन। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, द कॉस्ट ऑफ असेट्स सोल्ड नेट एज ऑन 1/4/15 वाज 10,000। इसमें तो कुछ मार्क ही नहीं किया, क्यों नहीं मार्क किया, रीजन का मैंने आपको लॉजिक बताया, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन से दिया है कि हमने जो असेट बेचा उसका कॉस्ट कितना है, तो वो तो प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए काम है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, मैंने तो मार्क ही नहीं किया उसको, तभी मैंने बोला था कि कॉस्ट क्यों दिया है, जो असेट बेचा उसका कॉस्ट क्यों दिया, फाइंड प्रॉफिट और लॉस ना, हमने सब कुछ नहीं, हमने तो मार्क ही नहीं किया, देखो बाद में फिफ्थ में, ठीक है। सिक्स्थ देखो, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन असेट। डेप्रिसिएशन कहां पे आएगा, क्लोजिंग हुआ ना, डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे होता है, क्लोजिंग, ठीक है। डेप्रिसिएशन का कभी डॉट मार्क नहीं होता, हम कर क्या रीड क्लोजिंग पुट डॉट मार्क, डेबिट का कोई डॉट मार्क नहीं आता। नेक्स्ट, a sum of 20,000 received in October 15 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. The refund was made on 3rd June 16। ये भी मैंने आपको बोला था, ये रिफंड का पैसा हमें ईयर एंड पे देना बाकी है, और ईयर एंड पे देना बाकी है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो रीड क्लोजिंग एंड पुट डॉट मार्क, इसका कैसे इफेक्ट देने को मैं आपको समझा, एंट्रेंस डोनेशन पे डॉट मार्क, क्योंकि एंट्रेंस डोनेशन का पैसा देना बाकी है, तो रीड क्लोजिंग पुट डॉट एंट्रेंस डोनेशन पे डॉट मार्क, ओके। नेक्स्ट, सी परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 15 lakhs, so purchase made during the year amounted to rupees 15 lakhs, okay। रीड क्लोजिंग पुट डॉट मार्क, रीड क्लोजिंग पुट डॉट मार्क, सो इसका डॉट मार्क मैं कहां पे करूंगा, और क्यों करूंगा उसका मैं आपको लॉजिक समझाता हूं, बट देन ये परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर का डॉट मार्क आप किधर करोगे, जो पेमेंट साइड क्रेडिटर्स है उसमें करो, पेमेंट साइड जो क्रेडिटर्स है उसमें करो, क्यों करने का आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2,10,000, ओके, तो इसका भी डॉट मार्क क्रेडिटर्स पे करो, क्यों करने का आई विल एक्सप्लेन। देखो अगेन आई एम से देखो ना, यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक था, स्टार्टिंग में क्रेडिटर्स थे, फिर 8 एडजस्टमेंट में परचेज है, 9 एडजस्टमेंट में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सब हमने डॉट मार्क किधर किया, क्रेडिटर्स पे किया, व्हाई आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। नाउ 10 सिर्फ इंफॉर्मेशन था, मतलब ऐसे मेथड ऑफ पॉलिसी चार्जेस ऑफ टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल द परचेज मेड ऑन अकाउंट ऑफ क्रॉकरी कटलरी ग्लास एंड लिनन इन द ईयर ऑफ परचेज, मतलब हमने जो भी क्रॉकरी कटलरी ग्लास लिनन परचेज किया है उसको कहां पे चार्ज करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उन्होंने इंफॉर्मेशन बोला ये सबको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट। सो द थर्ड स्टेप वाज रीड क्लोजिंग पुट डॉट, ओके। नाउ फोर्थ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। उसमें अभी आई एम आल्सो सॉल्विंग और मैं उसमें सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको बताऊंगा, सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम्स आई एक्सप्लेन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट, मैं सॉल्व करने जाता हूं और आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन पहले यहां तक आप देखो, आपको समझा एग्जैक्टली, ये तो इजी था ओपनिंग बनाना, लेकिन बाकी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया वो समझा कि नहीं, देखो यहां तक, अब इतना कॉपी करने को पड़ेगा। नाउ स्टार्ट सॉल्विंग, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, सो रिसीप्ट ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक इग्नोर, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, कितना सब्सक्रिप्शन 2,02,750, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। अभी यहां पे साइमल्टेनियसली हमें डॉट मार्क सॉल्व करने का, तो देखो कितने डॉट मार्क्स है, 4, राइट, देयर 4 डॉट मार्क्स, तो क्या चेक करने का, ओपनिंग का की क्लोजिंग का, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा, वो है ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन है, देखो असेट साइड भी और लायबिलिटी साइड भी, तो आइटम से दो ओपनिंग है, अगर दो ओपनिंग है तो ऑब्वियसली बाकी के दो क्या होंगे, क्लोजिंग ही होंगे ना, सो अगर दो ओपनिंग है दो क्लोजिंग, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देगा, ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देगा, देखो है ना, ओपनिंग में 12,000 अमाउंट को लिख देगा, या तो प्लस करने का या तो माइनस, ओपनिंग में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट डेबिट साइड दिया, हमने लिखा कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, लेस करने का भी सेम होगा तो ऐड करने का, ऑपोजिट होगा तो लेस, अगर आप यहां पे देखोगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में डेबिट साइड है और हमने लिखा कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, ऑपोजिट है तो क्या करेगा, लेस, ठीक है, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट, ओके।
नेक्स्ट और एक ओपनिंग का है, ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देने का, या तो प्लस करेगा या तो माइनस। तो देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग में क्रेडिट साइड है, ओपनिंग में क्रेडिट साइड है, हमने लिखा भी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो सेम है ना, ओपनिंग में क्रेडिट साइड, हमने लिखा भी क्रेडिट साइड है, तो सेम है, सेम है, तो प्लस करने का, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस इन प्लस। ओपनिंग सॉल्व हो गया। नाउ क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स की तरह दो इफेक्ट दो। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग है वो सब्सक्रिप्शन के लिए करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ 31 मार्च 16 क्लियर है, इतना 18000। और क्लोजिंग का फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स की तरह वो इफेक्ट देंगे, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब लेस फ्रॉम इनकम, और बैलेंस शीट लाने की साइड, ये सब आपको आने चाहिए बीसी के। हाउ मच, 18000। और एक डॉट मार्क क्लोजिंग का, क्लोजिंग वाला फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट की तरह कोई इफेक्ट देखो, सेकंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 16 was 7000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम इनकम रिसीवेबल, क्लोजिंग वाला फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग इनकम इनकम रिसीवेबल का दो इफेक्ट क्या आएगा, ऐड टू इनकम एंड बैलेंस शीट असेट साइड, चलेगा एंड बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, सो ये सबसे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इज एंट्रेंस डोनेशन, सो इससे डेबिट अकाउंट इफेक्ट ऑन अपोजिट साइड, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, सो बाय एंट्रेंस डोनेशन, ओके कितना अमाउंट बना है, और देखने का कितने डॉट मार्क है, कितने डॉट मार्क है, सो 3 डॉट मार्क है, एंट्रेंस डोनेशन पे 3 डॉट मार्क है, चेक करने का ओपनिंग आईडी क्लोजिंग का, ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में एंट्रेंस डोनेशन है, ठीक है, तो एक ओपनिंग बाकी दो क्लोजिंग, एक ओपनिंग बाकी दो क्लोजिंग, अगर ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देगा, ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देगा, या तो प्लस करेगा या तो माइनस। अगर आप देखोगे ओपनिंग में एंट्रेंस डोनेशन यहाँ भी क्रेडिट साइड, हमने लिखा भी क्रेडिट साइड, क्रेडिट का ऐड ऐड डोनेशन, और ये लॉजिक कब आते हैं ना, नाउ इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी, इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ लायबिलिटी, क्योंकि हमने मेंबरशिप दे दिया है, ये सब हमने मेंबरशिप दे दिया, नाउ इट इज इन द नेचर ऑफ इनकम, एंड सिंस इट इज इन द नेचर ऑफ इनकम वी आर कंसीडरिंग दिस एज इनकम, ये लॉजिक, ओके। सो ओपनिंग होगा तो अमाउंट को लिख देगा, देखो ऐड इज लेस, एंट्रेंस डोनेशन हमने लिखा कौन सी साइड है, सी ओपनिंग में लिखा है हमने लायबिलिटी क्रेडिट साइड, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड है, सो सेम होगा तो ऐड कर देगा, ओके। और बाकी दो क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट। नाउ सी अभी फोर्थ एडजस्टमेंट देखो, वो एंट्रेंस फीस के लिए, सो आई कैन से क्लोजिंग मतलब फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, ओके। सो नाउ सी द फोर्थ एडजस्टमेंट, वो एंट्रेंस फीस के लिए व्हाट दे से 50% ऑफ द एंट्रेंस डोनेशन मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, उन्होंने बोला है जितना एंट्रेंस डोनेशन है उसका 50% कैपिटलाइज, वी विल डू इट, लेकिन ये फोर्थ एडजस्टमेंट तो है एंट्रेंस डोनेशन के रिलेटेड, आप अगर देखोगे तो सेवेंथ एडजस्टमेंट भी देखो एंट्रेंस डोनेशन के रिलेटेड है। नाउ व्हाट दे से, और ये दोनों क्लोजिंग ही है, और क्लोजिंग मतलब फाइनल कॉस्ट एडजस्टमेंट की तरह करने का, फोर्थ एडजस्टमेंट भी एंट्रेंस डोनेशन के रिलेटेड है, सेवेंथ भी देखो उसके रिलेटेड, a sum of 20,000 received in October 15 as entrance donation from an applicant was to be refunded as he has not fulfilled the requisite membership qualification. This refund was made on 3rd June 16. तो देखो ये 7 भी एंट्रेंस डोनेशन के लिए, ओके। नाउ अभी फोर्थ में उन्होंने बोला कैपिटलाइज करो, 50% ऑफ एंट्रेंस डोनेशन को कैपिटलाइज करो, ऐसा उन्होंने फोर्थ में बोला, और 7 में बोला है कि 20,000 जो एंट्रेंस डोनेशन हमें आया था वो एक्चुअली हमें रिफंड करना है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया 30 मार्च 16 तक अब तक हमने रिफंड नहीं किया, अगर हमने रिफंड नहीं किया मतलब एंट्रेंस डोनेशन का रिफंड का पैसा देना बाकी ना, रिफंड नहीं किया, हमने नेक्स्ट ईयर रिफंड किया, नेक्स्ट ईयर रिफंड किया, 31 मार्च ईयर पे ये पैसा रिफंड देना बाकी, और बाकी एक आउटस्टैंडिंग हुआ, ठीक है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या पता है यहाँ पे, फर्स्ट सी फर्स्ट ओवर वी विल डू 7 एडजस्टमेंट एंड देन वी विल डू 4 एडजस्टमेंट। रीजन क्या है पता है कि पहले अगर हमने 7 एडजस्टमेंट कर दिया तो हमें एंट्रेंस डोनेशन का करेक्ट अमाउंट आएगा, करेक्ट अमाउंट आएगा, और उसके बाद ही हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। सो द पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज दैट अगर हमको एंट्रेंस डोनेशन को कैपिटलाइज करना है, ठीक है, तो पहले एंट्रेंस डोनेशन का करेक्ट अमाउंट होना चाहिए, अगर आप एंट्रेंस डोनेशन को कैपिटलाइज करना है पहले एंट्रेंस डोनेशन का करेक्ट अमाउंट होना चाहिए, ओके। तो करेक्ट अमाउंट तो क्या है, जब हम पहले 7 एडजस्टमेंट करेंगे फिर एंट्रेंस डोनेशन का करेक्ट अमाउंट आएगा, कैपिटलाइज गॉट इट। सो पहले 7 एडजस्टमेंट करेंगे, उन्होंने क्या बोला कि ये 7 एडजस्टमेंट में 20,000 जो रिसीव हुआ था फ्रॉम एन एप्लीकेंट वाज टू बी रिफंड, ठीक है, मतलब अगर अगर हम एंट्रेंस डोनेशन को रिफंड करेंगे, अब तक किया नहीं हम करेंगे, यार तक हमने किया नहीं है इसलिए वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नाउ अगर एंट्रेंस डोनेशन हमें रिफंड करना है, तो अगर एंट्रेंस डोनेशन अगर हमें रिफंड करना है तो ऑब्वियसली उससे हमारा एंट्रेंस डोनेशन कम हो जाएगा ना, जब एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आता है, जब एंट्रेंस डोनेशन का पैसा आता है तो हम ऐड करते हैं, तो जब भी रिफंड करना होगा तो उतने से हमारा एंट्रेंस डोनेशन कम हो जाएगा, अगर हम पैसा रिफंड करें एंट्रेंस डोनेशन का उससे उतने से हमारा एंट्रेंस डोनेशन कम हो जाएगा, हम लेस करेंगे एंट्रेंस डोनेशन, ठीक है। और ये पैसा अभी भी 31 मार्च 16 ईयर एंड तक देना बाकी है, और बाकी तो काम लिखेंगे लाइबिलिटी, ओके। सो माय पॉइंट इज पहले 7 एडजस्टमेंट करेंगे, अभी हम एंट्रेंस डोनेशन का करेक्ट अमाउंट है, अभी हम उसको कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटलाइज कैसे करने का, पर्टिकुलर आइटम से लेस करने का, और कैपिटल फंड में क्या करने का, तो उन्होंने बोला है 50% कैपिटलाइज करना, पर्टिकुलर आइटम से लेस करने का, और कैपिटल फंड में क्या करने का है,
आपको समझाइए मैंने क्या किया। So we have done with interest donation. So next, interest issue. Recipient payment on one effect on opposite side. एक डेबिट दूसरा क्रेडिट इधर कॉलम में लिखता हूँ। उसका रीजन अगर इसको स्ट्राइक हुआ क्यों मैंने इधर कॉलम में लिखा, सोचो क्यों इधर कॉलम में लिखा। हिडन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स की तरह, इसीलिए हिडन एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स की तरह, इसीलिए बस इतना मैंने बोला। वो अपन देखते हैं बाद में, खाली इधर कॉलम में लिखो। नेक्स्ट है सेल ऑफ असेट 8000। ये मैंने आपको 12th में भी बहुत बार सिखाया, ऑब्वियसली सब लोग ने पढ़ा होगा। सेल ऑफ असेट 8000, उन्होंने बोला है कि आपने असेट बेचा है। सी हम जो असेट बेचते हैं कौन से प्राइस पे बेचते हैं, सेलिंग प्राइस पे। ऑब्वियसली सेल ऑफ असेट अगर उन्होंने 8000 दिया है तो ये सेलिंग प्राइस ही होगा ना। असेट बेचा है 8000 में, तो अगर मैं असेट 8000 में बेचा दिस इज कंसीडर्ड सेलिंग प्राइस ऑफ असेट, ठीक है ना। अभी ऐसा है, आप देखो मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। जो एडजस्टमेंट उसमें 5th में आओ, वहां पे उन्होंने दिया कॉस्ट ऑफ असेट सोल्ड ऑन 1450 वाज 10000। उन्होंने क्या बोला है कि आपने जो असेट बेचा है, आपने जो असेट बेचा है 8000, आपने जो असेट बेचा है 8000, उसका कॉस्ट कितना है 10000। ओके, और ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इन इंडिया वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। वी फॉलो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो फिक्स असेट है आपको जो दिया हुआ है, फिक्स असेट का कॉस्ट है, वो फिक्स असेट का क्या है कॉस्ट, ठीक है। सो बैलेंस शीट में आपको जो फिक्स असेट दिया है उसका कॉस्ट 5 है, ठीक है। वो टोटल फिक्स असेट उसका कॉस्ट 5 है ना। अभी उन्होंने क्या बोला है कि रिसिप्ट पेमेंट बोला कि आपने असेट बेचा 8000, आपने असेट बेचा 8000 में, जो असेट आपने 8000 में बेचा उसका कॉस्ट कितना है 10000। आपने जो असेट 8000 में बेचा उसका कॉस्ट कितना है 10000, ठीक है। तो नाउ आई कैन से कॉस्ट 10000 है, लेकिन अगर हमने बेचा 8000 में तो 2000 का क्या लॉस। कॉस्ट 10000 हमने बेचा 8000 में है तो 2000 का क्या लॉस हुआ, ठीक है। नाउ ये पहले बात बहुत बार पढ़ा हुआ, इसको रिफ्लेक्ट कैसे करने का। तो कभी भी असेट बेचते हो, कॉमन सेंस यूज करो, कभी भी असेट बेचोगे तो असेट कम होगा। कभी भी अगर आप असेट बेचोगे तो आपका असेट क्या होगा, कम। अगर आपने असेट बेचा तो आपका असेट कम होगा, लेस कॉमन असेट। लेकिन असेट में से लेस उसका कॉस्ट भी करोगे ना, असेट में से लेस उसका कॉस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो बैलेंस शीट में असेट है, बैलेंस शीट में जो असेट है फिक्स असेट दैट, ये कौन से वैल्यू पे, कॉस्ट पे। बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट है उसका उन्होंने कॉस्ट दिया है, बराबर है। तो अगर बैलेंस शीट में फिक्स असेट अगर उन्होंने कॉस्ट दिया है तो ऑब्वियसली जब हम बेचेंगे तो असेट कम होगा, हम बेचेंगे तो असेट कम होगा, ठीक है। तो अगर असेट कम होगा तो वहां से हम लेस कॉस्ट भी करेंगे ना, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। मतलब बैलेंस शीट में फिक्स असेट इज कॉस्ट, बैलेंस शीट में फिक्स असेट इज कॉस्ट, तो जब हम बेचेंगे तो लेस करेंगे असेट में से, तो कॉस्ट भी लेस करेंगे ना, क्योंकि मैच तो होना चाहिए। कॉस्ट में से कॉस्ट भी लेस होता है, कॉस्ट में से कॉस्ट भी लेस होता है। ये पहले आपने n नंबर ऑफ टाइम्स किया, तो ये रट्टा मार लो कि कभी भी असेट बेचते हो तो बैलेंस शीट में से आप लेस करोगे, तो असेट बेचा तो लेस करना पड़ेगा। तो कभी भी असेट बेचोगे तो बैलेंस शीट में से जब आप लेस करोगे तो कॉस्ट ही लेस करोगे, कॉस्ट ही लेस करोगे। एंड और एक इफेक्ट क्या आएगा, असेट बेचोगे तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस कहां पे है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 2000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 2000। सो हमेशा याद रखने का, हमेशा याद रखने का, इफ द असेट इज सोल्ड तो असेट में से हम लेस करेंगे, तो क्या लेस करेंगे, कॉस्ट। कितना है कॉस्ट, 10000, ओके। एंड लॉस हुआ, असेट बेचने का लॉस होता है ना, लॉस कहां पे लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि ये सब मिलता है, इतना तो सब आपको आना चाहिए, ओके। हमेशा ध्यान रखना, असेट बेचोगे तो असेट में से लेस कॉस्ट करना चाहिए, और प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसका इफेक्ट आप देना चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लॉस हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस इनकम, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट का इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड। देन रिसिप्ट टैग, यू गिवन बाय रिसिप्ट टैग, एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड। एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट, रिसिप्ट टैग कॉफी रूम 10,70,000, सॉफ्ट ड्रिंक्स 5,18,000, स्विमिंग पूल 80,000, टेनिस कोर्ट 1,02,000। टोटल बात लिख सकते हो, तो पहले से सब बात लिखो। ओके, सो ये हमने रिसिप्ट साइड कंप्लीट किया, ठीक है। नाउ रिमेनिंग इज पेमेंट साइड, ओके। इसमें से एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सिंपल है। पहले देखो यहां तक आपको समझा, नाउ पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड। एक क्रेडिट दूसरा डेबिट, तो सैलरी पेमेंट क्रेडिट साइड है, हम लिखेंगे डेबिट साइड, तो आना ही चाहिए आपको। हाउ मच दिया गिवन 1,20,000, ओके। सो दिया गिवन 1,20,000। नाउ कितने डॉट मार्क्स है, एक डॉट मार्क है। चेक करेंगे ओपनिंग का क्लोजिंग का, ओपनिंग का होगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ओपनिंग में नहीं है, इसका मतलब इसका होगा, क्लोजिंग का होगा। और क्लोजिंग मतलब फाइनल कॉस्ट एडजस्टमेंट, फाइनल कॉस्ट एडजस्टमेंट का कोई इफेक्ट क्लोजिंग में है। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, सी द थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी 8,000, राइट। सो क्लोजिंग में फाइनल कॉस्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐड टू एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटीज, ओके। नाउ नेक्स्ट है सी क्रेडिटर्स। नाउ
बेसिकली मैंने आपको डॉट मार्क करने को बोला, लेकिन अभी एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करने का, तो आई एम एक्सप्लेनिंग एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करने का। सी वो डॉट मार्क तूने इसीलिए किया, इट बिकम्स कि आप कुछ भूलोगे, यू डोंट फॉरगेट, बट देन नाउ आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, अब इसमें आपका बेसिक अकाउंट्स बराबर होना चाहिए, दैट इज ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, नाउ सी हाउ आई एम प्रेजेंटिंग, ये डॉट मार्क मैंने बोला कर दो, तभी मैंने बोला था आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट। नाउ सी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कनेक्ट करता हूं, देखो आप हाउ आई कनेक्ट। सी बेसिकली व्हाट आई विल डू इज, जैसे वर्किंग नोट पे मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बनाऊंगा। इन वर्किंग नोट आई विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट, देयर इज अ रीजन व्हाई आई विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। देखो अभी अभी से ये मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, अभी फर्स्ट पॉइंट सब मेरे को कनेक्ट करना है, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड। जिसका बेस अच्छा है अकाउंट्स का 11th का बाय लॉजिक एंड लॉजिक, वो ये स्ट्राइक कर सकता है और वो समझ भी आएगा क्या है। सी पेमेंट साइड, रिसीवेंट पेमेंट पेमेंट साइड उन्होंने क्रेडिटर्स दिया 50 लाख 20,000। ठीक है, नाउ पेमेंट साइड उन्होंने क्रेडिटर्स दिया 50 लाख 20,000, हमने क्रेडिटर्स को पे किया 50 लाख 20,000, हमने क्रेडिटर्स को पे किया 50 लाख 20,000। नाउ अभी जो चार डॉट मार्क है वो किसके लिए हमने किए, मैंने आपको बोला था ना तभी कर दो डॉट मार्क, मैं आपको समझाता हूं। सो अगर आप देखोगे तो चार डॉट मार्क किसके लिए है, तो देखो ओपनिंग में क्रेडिटर्स थे 1 लाख 12,000, ओपनिंग क्रेडिटर्स 1 लाख 12,000, राइट। मैंने कभी बोला था ये जो स्टॉक है उसका भी डॉट मार्क कर दो क्रेडिटर्स पे। ये जो स्टॉक होता है स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। ठीक है, नाउ क्रेडिटर्स पे जो मैंने बोला ऐसे चार डॉट मार्क करो, क्यों करने का वो भी आपको समझ जाएगा क्योंकि मैंने समझा। तो पहले आप तब देखो हमने क्या समझा, आपको पेमेंट से क्रेडिटर्स कितने दिए हुए 50 लाख 20,000। ठीक है, नाउ चार डॉट मार्क थे, मैंने चार डॉट मार्क तो किसके लिए थे, देखो डॉट मार्क ओपनिंग में क्रेडिटर्स थे 1 लाख 12,000, ओपनिंग में क्रेडिटर्स थे 1 लाख 12,000, उसका एक डॉट मार्क था। मैंने आपको बोला स्टॉक का भी डॉट मार्क कर दो, ओपनिंग स्टॉक का डॉट मार्क था कितना, ओपनिंग स्टॉक 3 लाख 20,000, ये दो डॉट मार्क होने मिले। और दो डॉट मार्क किसके लिए थे, देखो मैंने आपको बोला था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अगेन रिपोर्ट को होल्ड वीडियो एक एडजस्टमेंट देखो, उसमें दिया परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 15 लाख, परचेज 15 लाख हमने किया, उसका डॉट मार्क था। और ये परचेज 15 लाख है, ठीक है, उसका हमने डॉट मार्क किया था। और मैंने आपको बोला इसको आप क्या समझोगे, क्लोज रिफर टू द वीडियो व्हाट इज को, और एक हमने डॉट मार्क किया, इसके लिए मैंने बोला देखो एक बार बाकी समझा। 9 एडजस्टमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वाज 2 लाख 10,000, क्लोजिंग स्टॉक था 2 लाख 10,000। ठीक है, मैंने बोला ये सब डॉट मार्क करो क्रेडिटर्स में। अभी एग्जैक्टली ये करने का कैसे, सी बेसिकली क्रेडिटर्स मतलब क्या, हमें जिसको पैसा देना है। सो क्रेडिटर्स मतलब हमें जिसको पैसा देना है, और हमें पैसा क्यों देना होगा, क्योंकि हमने परचेज किया होगा। सो हमें क्रेडिटर्स को पैसा क्यों देना है, क्योंकि हमने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। ओके, नाउ हाउ टू डू दिस, अभी आपको मैं बोलूं लॉजिकली स्पीकिंग अभी कैसे करें। सर हम सॉल्व क्या कर रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सॉल्व करें, तो पेमेंट साइड आया ना क्रेडिटर्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट करें, पेमेंट साइड क्रेडिटर्स आया 50 लाख 20,000, तो पेमेंट साइड क्रेडिटर्स आए थे 50 लाख 20,000। ओके, नाउ मैं क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं आप समझ जाएगा, से मैं बना रहा हूं क्रेडिटर्स अकाउंट। नाउ एज यू नो दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सॉल्व करें, ऑब्वियसली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सॉल्व करें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, इसका मीनिंग क्या हुआ, पेमेंट टू क्रेडिटर्स उन्होंने रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड दिया है, रिसीट एंड पेमेंट उन्होंने क्रेडिट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, एक क्रेडिट दूसरा डेबिट, दूसरा डेबिट हम कहां पे मानेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिटर को पे किया। अगर हमने क्रेडिटर को पे किया है तो ऑब्वियसली अगर क्रेडिटर अकाउंट बनाया तो उसमें डालेंगे 50 लाख 20,000, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, तो उन्होंने पेमेंट साइड दिया है क्रेडिटर्स, इसका मतलब हमने क्रेडिटर को पे किया, इसका मतलब हमने क्रेडिटर को पे किया। तो ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड देना है, तो अगर हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया, अगर हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, अगर हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स हम क्रेडिटर्स अकाउंट में डालेंगे ना, अकाउंट बनाया तो उसमें जाएगा ना। और ऐसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उन्होंने क्रेडिट साइड किया, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक चीज रट्टा नहीं मानो, कॉमन सेंस सवाल है। आपने क्रेडिटर को पे किया, जनरल एंट्री क्या है, क्रेडिटर को पे किया, जनरल एंट्री क्रेडिटर टू बैंक, कैश ऑन बैंक, क्रेडिटर को क्या है, क्रेडिटर्स टू कैश ऑन बैंक, क्रेडिटर को पे टू कैश ऑन बैंक, और कैश ऑन बैंक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश ऑन बैंक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देखो भाई क्रेडिटर्स लिखा है ना, रिसीट एंड पेमेंट लिखा है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश ऑन बैंक, और कैश ऑन बैंक अकाउंट मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या किया, बाय क्रेडिटर्स दिया ना, बाय क्रेडिटर्स 50 लाख क्रेडिटर्स। ओके, सो इन शॉर्ट हमने अकाउंट बनाया तो अकाउंट पे डालेंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट साइड आपको उन्होंने क्या दिया था, क्रेडिटर्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, उन्होंने पेमेंट साइड क्रेडिटर्स दिया था 50 लाख 20,000, वन इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, तो पेमेंट वाला क्वेश्चन में क्रेडिट साइड दिया, सॉल्यूशन में डेबिट साइड दिया, डेबिट साइड कहां पे लिखेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि हमने क्रेडिटर्स अकाउंट है। ओके, नाउ एज आई सेड देयर आर 4 डॉट्स, मैंने देखो क्या किया है, अभी से ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है, ठीक है ना, ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओके, ओपनिंग क्रेडिटर्स मैंने बोला ये चार डॉट कहां से है, ओपनिंग क्रेडिटर्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नाउ अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स है तो वो कहां पे है, ओपनिंग कैसे भी एक इफेक्ट होगा, ओपनिंग कैसे भी एक इफेक्ट है, ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग का एक इफेक्ट है, सो ओपनिंग क्रेडिटर्स कहां पे आएगा, बोलो क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा, और ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिटर्स लायबिलिटी, लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है। ओके, उसी अभी मैं क्या कर रहा हूं, चार डॉट मार्क थे कौन सॉल्व कर, चार डॉट मार्क थे ना, तो उसमें से पहला डॉट मार्क ओपनिंग क्रेडिटर्स था, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा, अकाउंट बनाएगा अकाउंट में आएगा, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड विद बैलेंस डॉट। सो अगेन आई एम सेइंग जो चार डॉट मार्क किए थे उसमें से एक सॉल्व हो गया ओपनिंग क्रेडिटर्स, मतलब ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो ये एक डॉट मार्क सॉल्व हुआ। ठीक है, नाउ परचेज, अब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट होता है। ओके, अभी 50 लाख हमने परचेज किया, वो अज्यूम होता है कि परचेज हमने क्रेडिट पे किया है, परचेज हमने कहां पे किया, क्रेडिट पे किया होगा, उधारी पे खरीदा होगा, तो क्रेडिट एग्जिस्टेंस में, तो ये जो हमने परचेज किया है वो हमने क्रेडिट पे किया होगा, उधारी पे किया होगा, तो वही तो क्रेडिट एग्जिस्टेंस में है। अभी क्लोजिंग है, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट होता है, दो, क्या दो इफेक्ट है, कॉमन सेंस से हमने परचेज किया है,
हमने परचेज किया तो हमें क्रेडिटर को पैसा देना है, हमने परचेज किया तो हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है, क्लोजिंग है उसका दो इफेक्ट आएगा। तो परचेज कहां का आइटम है, इनकम एक्सपेंडिचर का, परचेज कहां का आइटम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, मैं कहां लिखूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर लिखूंगा। तो ठीक है, परचेज किया इनकम एक्सपेंडिचर का आइटम है, परचेज एक्सपेंस डेबिट, और ये क्लोजिंग है इसका दो इफेक्ट आएगा। तो परचेज एक्सपेंस को इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, और परचेज क्रेडिट पे किया, हमने क्रेडिट पे किया तो हमें पैसा देना है, किसको देना है, क्रेडिटर्स को, हमें जिसको पैसा देना है हमसे क्रेडिट करेंगे, हमें किसको पैसा देना है, क्रेडिटर्स को देना है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया, हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है, परचेज हमें क्रेडिटर्स को पैसा देना है, परचेज का हमें देना है तो हमसे क्रेडिट करेंगे, किसको देना है, क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स को क्रेडिट करेंगे, उसका अकाउंट बनाया उसका अकाउंट में डालेंगे, राइट। सो माय पॉइंट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एज आई से क्रेडिटर्स पे चार्ज करना, ऐसा मैंने बोला था, उसमें से ओपनिंग क्रेडिट है, हमने क्रेडिट अकाउंट में डाल के फिर परचेज को क्लोजिंग एडजस्टमेंट दो इफेक्ट दिया, दो सॉल्व ना, मैंने ऐसे तो टेंपररी हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी डॉट मार्क किधर किया था क्रेडिटर्स में, लेकिन अभी अगर आप समझोगे तो बेसिकली ये जो ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है, एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिटर्स से कुछ लेना देना, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिटर्स से कुछ लेना देना, क्योंकि मैंने क्यों ये डॉट मार्क करने को बोला कि आप लिखना ना भूल जाओ, एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक किधर है, एक्चुअली अब ये परचेज है हमारे पास, ये परचेज है ना, ओपनिंग स्टॉक किधर है, इधर इनकम एक्सपेंडिचर है। सी अगेन एंड भले मैंने क्रेडिटर्स में चार डॉट मार्क आपको करवा दिया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी करवा दिया, आप भूल ना जाओ, लेकिन एक्चुअली ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिटर्स से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये सब मैंने परचेज से कनेक्ट है, इसलिए मैंने डॉट मार्क करवा दिया। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक कहां पे, ओपनिंग स्टॉक इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है, डेबिट साइड आता है ना, अरे हमने इतने सब फाइनल अकाउंट्स के लिए ओपनिंग स्टॉक कहां पे, इनकम एक्सपेंडिचर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, ओपनिंग स्टॉक, ओके। सो थर्ड डॉट मार्क सॉल्व, अभी ध्यान रखना ये मैंने करवाया क्रेडिटर्स पे डॉट मार्क, ये वो ऐसे ही करवाया कि आप भूल ना जाओ, बेसिकली तो ये किससे रिलेटेड है, ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज से रिलेटेड है, गुड्स से रिलेटेड, तो ये आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट से, ठीक है। थर्ड सॉल्व किया, फोर्थ क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमने एन नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन है, क्लोजिंग, और क्लोजिंग इंफॉर्मेशन का कितना इफेक्ट देगा, दो इफेक्ट देगा, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट देगा, दो, क्लोजिंग का फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, क्लोजिंग का फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट, इसका दो इफेक्ट क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आएगा एनपीओ में, पर्टिकुलर आइटम में से लेस करने का, पर्टिकुलर आइटम में से लेस करने का, और बैलेंस शीट कहां पे दिखाएगा, असेट साइड। सो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट एनपीओ में क्या आता है, एनपीओ का क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या आता है, पर्टिकुलर आइटम में से लेस करने का और बैलेंस शीट असेट साइड। ऑब्वियसली ये स्टॉक इसके रिलेटेड होता है, परचेज के रिलेटेड होता है, यहां से माइनस करने और बैलेंस शीट असेट साइड, ये प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज लिखा और लेस क्लोजिंग स्टॉक, एक्चुअली ऐसा नहीं, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। वापस एक बार समझा आपको, ये फर्स्ट टाइम ऐसे से मैंने बोला आपको, वेट नाउ अगेन आई एम शोइंग, सुनना बराबर से, बेसिकली एक बात समझो, ये क्रेडिटर्स पे मैंने चार डॉट मार्क किया, और वो डॉट मार्क किसके लिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे करने के लिए मैंने किया, अभी आप बोलोगे फिर अभी क्रेडिटर्स आपको कहां पे दिया, पेमेंट साइड दिया, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ऑपोजिट साइड, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट वन इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, मतलब वो पेमेंट क्रेडिट साइड दिया था क्वेश्चन में, तो हमने सॉल्यूशन में डेबिट साइड दिया, और सॉल्यूशन में हमने क्रेडिटर्स अकाउंट रफ में बनाई, क्रेडिटर्स अकाउंट हम किधर बनाएंगे, रफ में बनाएंगे। सो क्रेडिटर्स अकाउंट हमने किधर बनाया, रफ में बनाने का, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इधर लिखा है, क्रेडिटर्स अकाउंट हम रफ में बनाएंगे ना, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट वन इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, तो क्रेडिटर्स पे पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वन इफेक्ट ऑन ऑपोजिट साइड, सो ऑब्वियसली अकाउंट बनाया तो अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया तो उसमें जाएगा 50 लाख 20,000, वहां पे पेमेंट साइड दिया क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड हो गया, फिर चार डॉट मार्क उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स, ऑब्वियसली अकाउंट बनाया तो अकाउंट में जाएगा, ओपनिंग का एक इफेक्ट है, ओपनिंग का एक इफेक्ट, सिंस देयर आर फोर डॉट मार्क्स उसमें से एक ओपनिंग क्रेडिटर्स है, एक ओपनिंग का है, ओपनिंग क्रेडिटर्स तो उसके अकाउंट में जाएगा 1,12,000 विदाउट बैलेंस ड्रॉप। नेक्स्ट है परचेज, अब ये क्लोजिंग का है, तो क्लोजिंग का कितना इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट होगा, दो इफेक्ट होगा, हमने परचेज किया, परचेज कहां पे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, परचेज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड क्यों आएगा, सी परचेज का दो इफेक्ट है, परचेज एक्सपेंस का आइटम है, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, और क्लोजिंग का दो इफेक्ट है, दो इफेक्ट है, परचेज एक्सपेंस का आइटम, एक्सपेंस का, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, और ये अज्यूम होता है कि ये परचेज हमने क्रेडिट पे किया है, और क्रेडिट पे किया तो पैसा देना बाकी, और पैसा देना बाकी, इसलिए कौन सा अकाउंट में है, क्रेडिट अकाउंट, तो एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, समझा, ये क्लोजिंग है उसका दो इफेक्ट, और ये परचेज अज्यूम होता है कि इसको क्रेडिट होता है, और परचेज एक्सपेंस का आइटम, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, तो परचेज क्रेडिट पे किया हमें पैसा देना बाकी, हमें इसको पैसा देना बाकी, क्रेडिटर्स को हमें इसको पैसा देना बाकी है, हम उसे क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स को देना बाकी है, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाए उसमें क्रेडिट होगा, ये दो सॉल्व हुआ ना, ठीक है ना। थर्ड ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमने डॉट मार्क किया, एक्चुअली इसको क्रेडिटर्स अकाउंट से देना देना नहीं, लेकिन मेरे को यहां इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बताना था। अभी ओपनिंग स्टॉक, ये भी ओपनिंग है, ओपनिंग का इफेक्ट, ओपनिंग स्टॉक की इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, ओपनिंग का इफेक्ट, और ये क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग का कितना इफेक्ट है, दो इफेक्ट, क्लोजिंग का दो इफेक्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक एनपीओ में क्या करेगा, पर्टिकुलर आइटम में से लेस करने का, बैलेंस शीट कहां पे दिखाएगा, असेट्स, राइट, एनपीओ के सब समय आपने ट्वेल्थ में क्या क्लोजिंग स्टॉक पर्टिकुलर आइटम में से लेस करेगा, बैलेंस शीट कहां पे दिखाएगा, असेट्स, राइट। तो ये इफेक्टिव प्रेजेंटेशन है, इसको मैंने बात की। अभी क्रेडिटर्स अकाउंट है, ये तो ऑब्वियसली हमने रफ में बनाया होगा, रफ में बनाने का, अभी क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली अकाउंट बनाया तो अकाउंट को क्लोज करेंगे, कितने बचे 92,000, ये जो एंड में बचा हुआ हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स होगा, अभी क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी है, अभी भी क्रेडिटर्स को पैसा देना बाकी है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट को क्लोज किया, एंड में बैलेंस बचा, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी पैसा देना बाकी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओके। एंड नाउ ये कॉन्सेप्ट हो गया। सो पॉइंट क्या है, अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट बनाए, सुनो, अगर आप क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं बनाते ना, तो अगर आप पूरा ही करने जाते सब कुछ, मतलब विदाउट प्रिपेयरिंग क्रेडिटर्स अकाउंट आल्सो यू कुड हैव डन इट, बट वो एकदम चैलेंजिंग होता, वो एकदम चैलेंजिंग होता, ये पूरा मैंने एकदम डिफरेंट टाइप का सम डाला है शीट में, राइट। तो एक चीज ध्यान रखो कि अगर उन्होंने क्रेडिटर्स दे दिया, क्रेडिटर्स दे दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड ऐसा सब कुछ दे दिया, तो अकाउंट बना, और अकाउंट बनाओगे तो बहुत इजी आएगा, ओके। सो क्रेडिटर्स अकाउंट रफ में बनाने का, ठीक है, और होप्स भी आपको समझ में ध्यान रखना, स्टॉक का मैंने ऐसे डॉट मार्क किया क्रेडिटर्स पे, बेसिकली स्टॉक को क्रेडिटर्स से लेना देना नहीं है, जो साथ में होगा तो यहां पे इनकम एक्सपेंडिचर में प्रॉपर प्रेजेंटेशन आएगा, वरना भूल जाओगे,
सपोज अगर आपने स्टॉक का डॉट नहीं किया क्रेडिट टेस्ट में, तो लेकिन आपको याद रहता है कि ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेज लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक लिखना है, एंड आल्सो दिस फाइन जरूर नहीं स्टॉक का डॉट क्रेडिट टेस्ट में करोगे। अगर आपको याद रहता है कि ओपनिंग स्टॉक हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देंगे, यहां से लेस करेंगे और बैलेंस शीट असेट्स आएगी। अगर ऐसा याद रहता है तो डॉट करने की जरूरत नहीं, राइट? सो ये कॉपी कर लो, कॉपी दिस। सी नाउ द सम इज वेरी इजी। तो पूरा क्या डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्रेडिट असेट मैंने आपको बताया, पेमेंट से क्रेडिट असेट बाकी सब आइटम बहुत ज्यादा सिंपल है, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, अब इसमें से दो पॉइंट ध्यान रखना। दो पॉइंट कौन सा? एक है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूलना मत, उन्होंने बोला इसलिए डोंट फॉरगेट टू चार्ज डेप्री। एंड सेकंड हिडन एडजस्टमेंट है। अगर आपको रियलाइज होगा हिडन एडजस्टमेंट कौन सा है, ये इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक टाइप इन्वेस्टमेंट में हिंट दे देता हूं, ये हिडन एडजस्टमेंट बाकी पूरा सब सिंपल है। तो 5 लाख गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें 12% इंटरेस्ट है, 5 लाख पे 12% मतलब 60,000 रुपीस इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको 60,000 रुपीस इंटरेस्ट पूरे साल का आना चाहिए। 60,000 रुपीस इंटरेस्ट आना चाहिए ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर मेरे पास है और 12% इंटरेस्ट है तो पूरे साल का मेरे को 5 लाख का 12% 60,000 इंटरेस्ट आना चाहिए। लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट दिया कितना? 58,000। उन्होंने 58,000 दिया ना डिसिप्लिन पेमेंट अकाउंट में, इसका मतलब 58,000 हमें आ गया, तो 2,000 अभी भी इंटरेस्ट आना बाकी है। समझा? 60,000 आना चाहिए इंटरेस्ट, उसमें से रिसीव हुआ 58,000, 2,000 इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इनकम। वो हिडन एडजस्टमेंट वो भूलना मत, बाकी सब सिंपल है, यू कैन कॉपी दिस।